Hello friends, welcome once again. Now those of you going for the SSB, you all are aware that SSB is a personality based selection, and in the SSB there are three outcomes. One is that either you get screened out on the very first day, or second, at the end of the conference day you get conference out. Now both of these are undesirable effect, whereas what you want is recommendation. So clearly, the expectation of the SSB is not being met. That's why your expectation in turn is not being met. That is, it is a give and take relationship. So what does it mean? If you're screened out, if you're conference out, these are undesirable effect. It simply means that what you gave to the SSB was not acceptable to them. It was below their expectation, and in return what you got was not as per your expectation. That clearly shows that you went to the SSB without bridging the gap. There is an expected level of performance and there is an actual of the present level performance, and between them there is this gap. So you went to the SSB without filling this gap. That's why either you became screened out or you became conferenced out. Clearly not expected result as far as you are concerned, and it is simply a consequence of what you gave to the SSB was below their expectation. And the third result is the candidates get recommended. All of you are going for this, but not everybody is getting it. This is the desirable effect. So all of you are going there to the SSB to get recommended, but most of you are not getting recommended because what you gave it to them was not acceptable to them. So what you got was not as per your desire. So it's a give and take relationship. So you will need to give first to the SSB what they want, meet their expectation, their aspiration, and in return you will get what you want, that is recommendation through the SSB. And you know, as per the selection center commandants Bangalore K, the percentage of candidates who get recommended is simply 3.6%. That is, if 100 people goes, only 3.6 are getting recommended. That means 96.4% people are not able to meet the aspirations of SSB. In return, your own aspiration is not being met. So that's very, very clear equation. So there is a case to understand that why such a large number of people, that is 96.4 people, are not getting recommended, and what mistake they are doing, so that you can correct them. So it makes sense to understand that you have to fall into this 3.6% category of people who are meeting the aspirations of the SSB first, and in return getting their own aspiration met. So let's see that. Now to understand that, you have to look at this picture. This first man is doing an action, and the second man is the person on whom the first man is acting, and so he is the karta. Karta is a person who does the action. This is the action, and this action will come with a consequence, and the consequence is definitely this man will fall down. But when this man falls down, this in turn will have an effect on this man. He also will fall down. So it's a give and take relationship. I call it law of karma. So to understand why 96.4 people are not percentage people are not getting recommended, you have to understand the law of cause and effect. What does it mean is, unless you sow, you will not reap, and what you sow, the quality of that will determine what you reap. And if you understand that equation, you can also understand that where are you making the mistake, what is your approach to SSB interview preparation. Unless you understand that, you cannot understand why the returns are so low. 96.4% people are not getting recommended. To understand this, you can divide your entire SSB preparation and the final outcome of getting recommended into three parts. The part one is your preparation stage, that is before going for the interview. Today, present, here and now, what are you doing? That is the preparation stage. You're supposed to plan it, you're supposed to prepare it, you're supposed to perform. Only then you can perform. The second stage is your performance stage at the SSB. Now what you perform in the SSB in front of psychological tests, GTO and interview, karma, mancha, mansa, is only a simple consequence of how do you prepare before going for the SSB. And last is on the conference day, the outcome of the SSB. So the outcome of the SSB is dependent on what you perform in the stage 2, that is in front of the psychological test, interview and GTO. And before them, what you perform will be a consequence of what you do during the preparation stage. So they are all linked. To explain this, I will explain a very, very simple language, law of karma. There was already a video on that previously, अभी भी होगा शायद, check कर सकते हैं Facebook में. ये बोलता है कि every cause will have an effect.
The cause will be in the past, the effect will be in the future. So every cause will have an effect. And if the cause is desirable, the effect also will be desirable. So in terms of SSB, the desirable cause is to develop your personality. You develop your personality. This development of personality will act as a cause, and an improved performance in the stage 2, that is in the before the psychologist, GTO and interviewing officer, will become the effect. So if your cause is desirable, your effect will also be desirable. So personality development करोगे तो आपका TAT, WAT, SRT, GTO, फट्टा बल्ला सब अपने आप ठीक हो जाएगा. But unfortunately when the cause is undesirable, आप personality manipulation में चले जाते हो. You know, there are people who tell you sprinkle OLQ, dead body का drama, पावर ऑफ एक्सप्रेशन ना हो तो आई एग्री विथ यू, लेट्स मेक कैंटिलीवर, ये सब बोल देना. स्ट्रक्चर एनालिसिस ना करके आप फट्टा लेके भाग लेना. व्हेन यू डू ऑल दोज थिंग्स, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी विच इज द डिजायरेबल कॉज. यू आर manipulating your personality by paying money to people like us, and this is undesirable cause. And when the cause is undesirable, you cannot imagine to get a desirable effect. So when your cause is undesirable, naturally your performance in the SSB will also be undesirable, because आपने बीज ही गलत बो दिए. अगर आप कीकर का बीज बोगे तो एप्पल तो नहीं मिलेगा, और अगर आपने एप्पल का बीज बोया तो नेचुरली एप्पल ही मिलेगा. सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ, इफ यू क्रिएट डिजायरेबल कॉज यू विल गेट डिजायरेबल इफेक्ट, एंड इफ यू क्रिएट अनडिजायरेबल कॉज यू विल गेट अनडिजायरेबल इफेक्ट. अभी आप क्या करना है, you have to see if your power of expression is weak. I'm asking you a couple of questions. If your power of expression is weak, would you put it in desirable or undesirable? Naturally, if it is undesirable, the consequence will be अगर आपका current affairs prepare नहीं और आपको अच्छा भी नहीं लगता, so if you go to the SSB without preparing your current affairs, you tell me, is it a desirable effect or undesirable? Naturally, it's undesirable. The effect will be undesirable. अगर आप फट्टा उठा के भागते हो लेकिन आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं आता, और आप दूसरों से लोड उठवाते हो और आपको लगता है ये सब करने से लीडर बन जाओगे, इज इट द डिजायरेबल ट्रेनिंग और अनडिजायरेबल? नेचुरली इट इज अनडिजायरेबल. योर इफेक्ट विल बी अनडिजायरेबल. साइकोलॉजिस्ट ने दिया डेड बॉडी. ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू हैंडल द डेथ and in the process show your capacity to handle stress. That is your stress handling. But somebody told you कि recommend होना be positive, उसको ड्रामा बना दो. So dead body का ड्रामा बनाना है. You tell me, is it a desirable response or undesirable response? Naturally it's undesirable. अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग वीक है, अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप रटा हुआ चीज़ें सुनाते हो, क्रैक एसएसबी के साइड से चीज़ों को लाके लिख देते हो, ऑल दीज थिंग्स आपको लगता है ये डिज़ायरेबल है, बट सोच के देखो, आर दे डिज़ायरेबल और आर दे इनडिज़ायरेबल? सर्विस एंट्री के केस में पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज अ वेरी वेरी वीक एरिया. डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी गिविंग यू द डिज़ायरेबल रिजल्ट? नो, इट विल नॉट गिव यू. इसका मतलब है बड़ा क्लियर है कि आप अपने SSB के प्रिपरेशन के नाम पे स्टेज 1 पे all activities that you do, either they are desirable or they are undesirable. And if they are desirable, they will give you desirable effect. If they are undesirable, they will give you undesirable effect in the phase 2. What is the phase 2? Performance stage. And what is the phase 3? The outcome stage or the conference ka result. So dobara, every cause will have an effect, and if the cause is desirable, the effect will be desirable. If the cause is undesirable, the effect also will be undesirable. Now, second part of this law of karma. First part is every cause will have an effect. Second part is every effect. So every effect, this effect will become the cause for the subsequent effect. So what you perform before the psychologist interview and GTO will be the performance which is dependent on the cause that you created in the preparation phase, that is phase 1, and this effect itself will become the cause for your subsequent effect. So every effect will become the cause for the subsequent effect, and the subsequent effect will come on the conference day. So on the conference day again there will be an effect. So if this is the desirable performance, that is congruence in performance both intra-technique and inter-technique, the final result will be desirable, that is, you will get recommended.
एंड इन केस इफ इट इज अनडिजायरेबल, डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी छुपा दो, अनडिजायरेबल इफेक्ट होगा तो वो अनडिजायरेबल कॉज बन जाएगा कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड द इफेक्ट विल बी यू विल गेट नॉन रिकमेंडेड. सो इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड that in the conference, if you want a desirable effect, you have to create the desirable cause in the stage 1 preparation stage. Only then in the stage 2 you can perform, demonstrate that. सो इस पूरे इक्वेशन को अगर आप समझ गए हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बीज ही पर्सनालिटी मैनिपुलेशन है तो पर्सनालिटी मैनिपुलेशन बिकम्स अनडिजायरेबल कॉज, दिस विल गिव यू अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड दिस विल बिकम द कॉज फॉर द सब्सिक्वेंट अनडिजायरेबल इफेक्ट. सो नॉन रिकमेंडेड. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसका लॉ ऑफ कर्मा का. इफ यू डोंट लाइक द इफेक्ट, अगर आपको ये अनडिजायरेबल रिजल्ट पसंद नहीं है, चेंज द कॉज. तो आज आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा और ये TAT WAT और ये जो ISO के PGT HGT कराते हैं ये सब लफड़ाबाजी छोड़ना पड़ेगा. सो यू चेंज द कॉज, you will get the desired effect. I hope this equation is clear. अगर आपको ये equation clear है, only then you will be able to meet the expectation of the SSB. Once you meet the expectation of the SSB, your expectation will be met in turn. It's a return gift. आप उनकी अपेक्षाओं को पूरी करो और वो आपकी अपेक्षाओं को पूरी करेंगे. तो that's where I said कि be process oriented. तो आपके पास दो चॉइस है, पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कर लो और उनको बेवकूफ़ बना लो, 96% में फंस जाओगे, और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लो, अच्छे से कर लो और जितना उनकी अपेक्षा है, और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू मे फॉल इनटू 3.7. द चॉइस इज योर. सो आपने ये देखना है कि आपने यू हैव मेड अ बिग गोल एंड दैट गोल इज टू गेट रिकमेंडेड बाय द SSB. सो SSB से रिकमेंड होना. दिस इज द फेज 3. दिस इज द फेज 3. द फेज 1 इज योर प्रिपरेशन. What do you do as part of your preparation is phase 2 and phase 1, and phase 2 is your performance in the SSB. So you have to understand कि गोल सेट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा इस गोल तक पहुंचने का आपका रास्ता कितना है, इस रास्ते तक जाने के लिए आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है जो आपको यहाँ तक पहुँचने नहीं देगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज इंटरमीडिएट ऑब्स्टिकल्स और आपको इन ऑब्स्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा. आइदर यू बाईपास देम और यू नो गेट ओवर देम, विच एवर वे इज दैट. इन वीकनेस को रह के अगर यात्रा शुरू नहीं करोगे आप इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग शॉर्टकट टू सक्सेस देख रहे हो और आपको इस शॉर्टकट टू सक्सेस में बहुत सारे कोचिंग हेलीकॉप्टर से आपको ऊपर छोड़ देंगे बोल रहे हैं. मतलब आपको चढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है. कुछ लोग तो 5 दिन में सिग्नेचर कोर्स कराते हैं. तो आप एक इस तरह के हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, इस तरह से आप सक्सेस पाना चाहते हो. जीवन में हेलीकॉप्टर से सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको सीढ़ी भी नहीं मिलेगा, आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा. इस तरह से आप हेलीकॉप्टर में बैठ के जो शॉर्टकट की गोलियां ढूंढ रहे हो, यू नो ISO सर्टिफाइड शॉर्टकट टू सक्सेस, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू राइट गुड PP and DT. नो, बहुत शॉर्टकट सिखाया जा रहा है. ये देखने में अच्छा लगेगा लेकिन याद रखना हेलीकॉप्टर से आदमी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से जब छोड़ेंगे नीचे ही आएगा. लेकिन जो बंदा ज़मीन से उठा है वो ऊपर ही जाएगा. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने तो ज़मीन से उठाऊँ. आप कैसे करना चाहते हो? सो व्हाट इज़ योर अप्रोच और व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू अचीव योर गोल. गोल इज़ नॉट वेरी ईजी. तो टांग पे टांग ऊपर रख के आप ये 3.6 कैटेगरी में नहीं आ सकते. इसको आपको अपना इस चाल को, हेलीकॉप्टर चाल को छोड़ना पड़ेगा. Now, if you don't understand that the problem with the ISO certified coaching centers are they give you very very comforting lies. A4 भी बहुत हार्ड है क्योंकि ये आपको आपके अंदर का खोखलापन दिखाता है. मैं आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की बात बोलता हूँ, लेकिन ये जो ISO सर्टिफिकेशन में है 5 दिन का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें क्या है, आपका हेलीकॉप्टर का वो है. तो उसके पास देखो भीड़ में लाइन भी बहुत है. A4 में तो लोग आएंगे नहीं क्योंकि मैं तो बोलता हूँ भैया आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा. आप SSB का बेवकूफ़ नहीं बनाओगे क्योंकि आप बेवकूफ़ बनाओगे वो कॉज बन जाएगा और रिकमेंडेशन नहीं होना आपका इफेक्ट बन जाएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. बिकॉज जब आप इस तरह की कोचिंग में जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि असली क्या है, नकली क्या है. आपको पता है ये असली सूरज है लेकिन कोचिंग आपको नकली सूरज पे चढ़ा देता है. इतना भी आप इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करते कि आपको सही और गलत का नहीं पता. भेड़ चाल से आप कैसे SSB रिकमेंड होगा. दिस इज़ द फेक. लेकिन हम फेक को बिलीव करते हैं क्योंकि दे गिव यू हेलीकॉप्टर काइंड ऑफ ए अप्रोच टू SSB रिकमेंडेशन. बोलते हैं कि हम आपको ऐसे कहानियाँ सिखाएंगे, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, है ना, रोप बांध दो तो इतना, डेड बॉडी का ड्रामा बना दो इतना, कोर क्वालिटी को भी छुपा देंगे हम, तो यहाँ तक सिखा देते हैं. तो दीज आर कॉल्ड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन.
दिस इज अ माइंडलेस ट्रेनिंग। रीजनिंग एबिलिटी इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल OLQ, लेकिन आपका इस तरह की जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें रीजनिंग तो है ही नहीं। देखो ये बंदा कंफ्यूज हो गया कि सूरज तो इधर है, हम सब इसके पीछे क्यों जा रहे हो। आप भी ऐसे ही जा रहे हो। आसान लग रहा है लेकिन आसान इज नॉट ऑलवेज राइट। What is asan may not be always right. So you have to understand military leadership cannot be based on personality manipulation. So what you're getting done is personality manipulated instead of personality development. और वहाँ की ज़रूरत क्या है, ये व्यक्तित्व के आधार पर है। इस तरह से तो आप और बेवकूफ़ बन जाओगे। ये शॉर्टकट ढूंढ ढूंढ के ना आप साले घर के रहोगे ना घाट के। सो डोंट डू दिस, बिकॉज व्हेन यू डू दिस एंड व्हेन यू गो टू द SSB डेफिनेटली दे कम टू नो कि ये लड़का OLQ की एक्टिंग कर रहा है। आपको दिख रहा है डेड बॉडी है, लेकिन उसके बावजूद आप ड्रामा बना रहे हो। आपको पता है आपके अंदर वो कमी है, फिर भी आप एक्टिंग कर रहे हो। कितना एक्टिंग कर लोगे हेलीकॉप्टर से। एंड जब ये करोगे तो नेचुरली यू विल नॉट बी एबल टू गिव व्हाट द SSB is looking for, and once you don't give you will not get, because there is no alignment and your result will always be like this bhed chaal. You'll have to leave this bhed chaal. और सर्विस एंट्री खासकर क्योंकि आप लोगों का माहौल ऐसा होता है कि ना पढ़ने का माहौल होता है ना अपने आप का विकास करने का, उलझे रहते हो यूनिट के कामों में। यू हैव टू वर्क मोर हार्डर देन सिविलियन एंट्रीज एंड दैट्स व्हाई द क्लियरेंस इज ओनली 3.6. दिस इज द एवरेज क्लियरेंस एज कन्वेड बाय ex-commandant selection south, but in case of service entries it is not even 2%, it is less than 1.5%. आपको मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था कि 3023 कैंडिडेट ACC 1, 2, 3 के रिकमेंड हुए हैं एंड 75 वैकेंसी है, दैट इज सिंपली 2.5%. सो मतलब नॉट इवन 3%. इफ 2.5% आउट ऑफ 2023 आर रिकमेंडेड, दैट मीन्स 75 वैकेंसीज आर फुल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू रियली हैव टू बी रियली गुड to make it into not only the recommendation to the merit. So you have to work hard. So आप लोगों को एक सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आपका जो रिकमेंडेशन है वो आपके इस मैनिपुलेटिव ट्रेनिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है. बिकॉज आप अगर SSB को, अगर ये SSB है, आप SSB को बेवकूफ़ बनाओगे, इनको लात मारोगे, इनकी इज्जत नहीं करोगे, इनको झूठ बोलोगे, रटी हुई स्टोरियाँ दिखाओगे, तो नेचुरली SSB का तो नुकसान होगा ही, बिकॉज दे कैन नॉट assess you properly because of your manipulated training. बट इन रिटर्न नुकसान आपका भी होगा, क्योंकि गड्ढे में तो आप भी गिरोगे, नॉन रिकमेंडेशन तो आपका भी होगा. SSB को तो क्या है, तुम नहीं तो कोई और आ जाएगा. सो अगर आप SSB को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, SSB विल नॉट रेस्पेक्ट यू. इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. सो बहुत ज़रूरी है कि आपके इस पूरे तैयारी में क्लैरिटी होना. अगर क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस. तो आई वॉन्ट टू नो, क्या आप लोगों को क्लियरली पता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं SSB के नाम से, क्या वही है SSB का रिक्वायरमेंट? ये जो आप डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी छुपा दो, क्या यही सब फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, लोड मत उठाना, है ना, आई एग्री विथ यू बोलना, कैंटिलीवर, नो, ये नहीं है. आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. और क्लैरिटी की अगर ज़रूरत है, ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, इसमें लिखा हुआ है, देखो आर्मी हेडक्वार्टर लेटर है, इसमें लिखा है द आर्म फोर्सेज ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एज अ काउंटर टू द कन्वेंशनल SSB कोचिंग सेंटर. कन्वेंशनल था जो ISO डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी छुपा दो वाला, है ना, गॉड ऑफ SSB वाला. एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन टुडे इज फॉर, पहले ये जब बना था तो उस टाइम नॉन रिकमेंडेशन, नाउ इट्स फॉर एवरीबडी बाय द नेम सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. तो आपको थोड़ा सा सोचना, दोबारा बता रहा हूँ, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये जो आप लोग पाइड पाइपर ऑफ एम्बुलेंस जैसे वो बाजा बजाता और सारे चूहे भागते हैं, आप भेड़ चाल में मत चलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. मैं बार बार अगर इस वीडियो को बना के बोल रहा हूँ, DIPR का लेटर दिखा रहा हूँ, इनका दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ तो बात होगी. आप SSB को गलत करोगे तो SSB के पास आपसे ज़्यादा ताकत है आपको नॉन रिकमेंडेशन करने का. सो दोस्तों, वो विश टू ज्वाइन दी AFOSB. आपको पता है यहाँ पे हमारे 2 प्रोग्राम है, दोनों आज से शुरू हो गए. एक SML का क्लास मॉर्निंग में ख़त्म हो चुका है. सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो क्लास है, इट इज़ अ प्योर लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ हायर देन द सिलेबस दैट इज कवर्ड इन YLC. ओनली एडवांटेज ऑफ YLC इज द ड्यूरेशन इज मोर. आई कैनॉट हैव दैट मच ऑफ ड्यूरेशन बिकॉज दी फीस कंस्ट्रेंट्स, पैसा है यहाँ पे, है ना. एंड AFOSB का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, इट इज़ Armed Forces Officer Selection Orientation Program, which is a complete orientation to SSB. 500% clarity, 500, not 100, 500% clarity. तो आपको दोस्तों विश टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दैट. इसका जो शेड्यूल है वो आज से सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का 2 वीक का बैच शुरू हो चुका है. एक क्लास आज खत्म हो गया है. हाउएवर यू कैन स्टिल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, बिकॉज टुमारो विल बी ए रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी डिड टुडे, बिकॉज कपल ऑफ पीपल हैव जॉइन टुडे. सो 5 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर 2020 मॉर्निंग में 9 AM से 11 AM 2 आवर्स का है. ये आपको
ज्वाइन कर सकते हो। आप अभी मुझे मैसेज कर सकते हो ताकि कल का जो 9 o'clock क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप 8 AM टुमारो तक यू कैन सेंड मी द फीस ट्रांजैक्शन डिटेल एंड कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। उसी तरह से SML का बैच आज 8:30 बजे से शुरू होगा और 10:30 बजे तक 2 घंटे का है, और ये आज आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली साइक के लिए। आज जो है साइकोलॉजिकल क्लासेस शुरू हो रहा है, PP and DT ऑल्सो, और आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड उसका क्लियरेंस भी लो है, एंड उसमें सबसे ज़्यादा लोग अटकते हैं रीजनिंग एबिलिटी। सो और उससे भी ज़्यादा PP and DT में तो ऑलमोस्ट 60-70% अटक जाते हैं। सो वी विल हैव टुडे ऑनवर्ड्स द PP and DT एंड साइक टेस्ट, एंड आपको पता है 70% वेटेज इज ओनली फॉर TAT. So all those things we'll cover and we'll see what mistakes are you doing. So I will suggest you to join both SML as well as the AFOSP classes. जिन लोगों को ज्वाइन करना है 500% गारंटी, क्लैरिटी गारंटी 500%। अगर मैं बोल रहा हूँ तो दम पे बोल रहा हूँ, एक वर्ड रट्टा नहीं, सब कुछ समझ से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे ऐसे तगड़ा कॉज क्रिएट करेंगे कि SSB को मजबूर कर देंगे रेकमेंड करने के लिए, वरना खैरात पे ऑफिसर नहीं बनना, कोर क्वालिटी छुपा के मुझे ऑफिसर ही नहीं बनना, ऐसी सोच लाएंगे। एंड अगर रजिस्टर करना है तो इस नंबर पे मुझे अभी व्हाट्सअप करना 8275777650। सेंड मी व्हाट्सअप मैसेज, आई सेंड यू द डिटेल्स, देयर आफ्टर सेंड मी द फीस ट्रांजैक्शन डिटेल एंड आई विल कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन, शेयर you the password and the ID for today's session. Now those of you wish to attend one session of SML, that is tomorrow morning, you can attend that at 9 AM, and one class of SSB वो आज शाम को अटेंड कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्रांसफर दी रजिस्ट्रेशन फीस विच इज़ ₹500। इसको करके यू कैन सेंड मी कि मैंने ₹500 पे कर दिया रजिस्ट्रेशन फीस, एंड यू कैन अटेंड टुडेज 8:30 क्लास एंड टुमारोज 9 AM क्लास। दोनों दिन को अटेंड कर लो, उसके बाद यू कैन टेक ए डिसीजन टू ज्वाइन और नॉट। And in case if you decide to join within this week or next week, this 500 will be adjusted against your fees. Otherwise, this fees will be consumed for these 2 classes. You'll get anyway 2 classes, and I'm sure these 2 classes will be of tremendous value. So your 500 will anyway be there. और अगर आप join कर रहे हो इस week में, that is आज का बैच को या अगले बैच को, तो this 500 will be adjusted against your fees. So आपका 500 recover भी हो जाएगा. So that's an option. Kindly share this information with your friends so that maximum people can benefit, and you can also join for only the today's and tomorrow's batch by depositing ₹500 registration fees. इसके अलावा ACC 123 का रिजल्ट आ चुका है। 3023 कैंडिडेट्स हैव क्या बोलते हैं गॉट इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द रिटर्न। नाउ इन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, उसके लिए आप मुझे दोबारा 8275577650 पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स एंड यू कैन contact me for registering it, and I hope to see you in last number. Kindly share this information with your friends, and thank you, and may God bless you. Thank you very much.